بہار میں اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے کوشش کرنے والے ایکشن کمیٹی ایک مشہور نام ہے ادارے کا. آج انصاف نیوز آن لائن پہ اردو ایکشن کمیٹی کے سربراہ اور بہار کی تاریخی اخبار قومی تنظیم کے ایڈیٹر اشرف فرید صاحب ہمارے خصوصی مہمان ہیں. آج ہم ان سے بہار میں اردو کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے. اشرف فرید صاحب، آپ کا انصاف نیوز آن لائن میں خیر مقدم ہے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بہار میں اردو کا مستقبل کیا ہے اس وقت؟ آپ بہار میں اردو کا مستقبل ہمیشہ بہتر رہا ہے اور آئندہ بھی بہتر رہے گا. اتنی بڑی آبادی ہے یہاں اردو والوں کی، بہار کے ہر جگہ آبادی ہے اردو والوں کی، تو اردو والوں کو یہ محسوس کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی یہ جو زبان ہے اردو، اگر ہم نے اس سے خدا نخواستہ رشتہ توڑ لیا تو ہماری تہذیب اور ہماری جو ثقافت ہے، ہماری تمدن ہے، وہ کہاں برقرار رکھے گی؟ ہم جو ہے لسانیات کے کس خانے میں فٹ کیے جائیں گے؟ اردو تو صرف آپ یہ سمجھیے کہ مسلمانوں ہی کی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک نیریٹو بنا لیا. ابھی حال ہی میں آپ دیکھا ہے جو ان کا جو یہ اردو ایسے نہیں، وہ ان کا جو یہ ہوا نا بھائی، کیا نام ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کا جو اسمبلی میں بیان آیا ہے، بہت ہی افسوسناک ہے. انہوں نے کہا کہ اردو پڑھنے سے لوگ کٹ ملا بنیں گے، کٹ ملا بنیں گے. بھائی اردو تو جو ہے مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطالعہ کریں تو اردو تو خالص ہندوستانی زبان ہے جو ہر لوگ پڑھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں. پرانے دور میں بڑے بڑے جو ہے جو شاعر ہوئے، ادیب ہوئے، ہندو ہی تھے. وہ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ فراق گورکھپوری ہے نا، رگھوپتی صاحب ان کا نام تھا، فراق گورکھپوری تخلص تھا. وہ حالانکہ الہ آباد یونیورسٹی میں وہ انگلش کے پروفیسر تھے، لیکن ان کی شناخت اردو سے تھی اور اس پر یہ فخر بھی محسوس کرتے ہیں. اشرف صاحب، سوال یہ ہے میرا کہ کہا جا رہا ہے کہ بہار میں اردو اسکولوں میں اساتذہ کی شدید قلت ہے اور اردو کتابیں بھی نہیں پہنچ پا رہی ہے. جب نئی نسل جب اردو نہیں پڑھے گی تو پھر اردو کا مستقبل روشن کیسے رہے گا؟ بہار میں تو اس مرتبہ کافی تعداد میں اردو ٹیچروں کی بحالی ہوئی ہے. اب آپ کی ذمہ داری پڑتی ہے نا، اردو والوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیے نا. آپ دیکھیں کہ ایز اے ہول مسلم بچوں کی تعداد اسکول میں، خاص طور پہ جو بنیادی اسکول ہوتی ہے، جو پرائمری اسکول ہوتی ہے، اس میں کافی کم ہے. اس کو کیسے آپ اٹھائیے گا؟ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ غربت اور افلاس میں مبتلا ہے. اس کو آپ کے سچر کمیٹی نے اس کو محسوس ہی نہیں کیا، اس نے اپنی رپورٹ میں بھی لکھا. تو اب مسلمانوں کے لیے سب سے اہم وقت یہ ہے کہ بھائی جو بچے ہیں، ایک دور تھا کہ مکتب میں تمام جو بچے جو ہوتے تھے، خواہ وہ پیسے والے کو ہیں، غریب ہوں، سب ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے تھے. اردو میں بھی پڑھائی ہوتی، اردو میں بھی پڑھتے تھے، فارسی بھی تھی، آپ کے عربی بھی پڑھتے تھے اور میتھ بھی پڑھتے تھے، الجبرا وغیرہ سب پڑھایا جاتا. ہم لوگوں نے تو پڑھایا ہے اس مکتب میں، لیکن آہستہ آہستہ اس کا تصور ختم ہوتا گیا مکتبوں کا، جس سے شدید نقصان پہنچا. اور آپ یہ جان لیجئے آج بھی جو ہے جو بچے ابھی اردو کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ کافی جگہ وہ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں جو ان کا جو ایمس ایمبیشن ہے اس میں کافی آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کی جو اردو ایکشن کمیٹی ہے اس کے وہ کن خطوط پہ کام کر رہی ہے اور اس کا بنیادی ویژن کیا ہے؟ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بنیادی ویژن یہ ہے کہ یہاں جو ابھی
1775 बड़े पैमाने पर जो उर्दू ट्रांसलेटर है इसकी जो बहाली हुई थी, जी उस सिलसिले में कुछ बहुत पेचीदा मसाइल आ गए थे, जी लेकिन उस मसले को हम बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। उर्दू एक्शन कमेटी के जरिया जो है हमारी क़यादत में लोग गए और उस मसले का हल हुआ। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो है खुद आप अपनों ही में लोग जो है ये करते हैं, उसको क्या कहा जा सकता है कि वो अगर आपका नहीं हुआ तो चलिए आपने केस कर दिया। जी अब केस कीजिएगा तो मामला तो लटक जाएगा ना। जी जी लेकिन बहरहाल सुना है कि अब लोग जो असिस्टेंट टीचर का जो असिस्टेंट ये जो है आपके ट्रांसलेटर का जो मामला था वो उसकी काउंसिलिंग वगैरह हो गई है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उनको बहाली का जो है ये तकर्रुरनामा जो होता है वो उनको मिले, हम लोग यही उम्मीद करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए बच्चों को अगर आप अपनी मादरी जुबान में तालीम नहीं देंगे तो वो बच्चे आपके कमजोर होंगे आगे चल के। इसलिए कि मादरी जुबान में जो तालीम लोग देते हैं वो बच्चे जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं वो बहुत ही, उनको देखा गया है, ये मैं नहीं कर रहा, ये रिसर्च हुआ है एक, कि वो बच्चे ज्यादा जो है जहनी तौर पर ज़हीन होते हैं और किसी चीज की तख्लीकी सलाहियत उनकी बहुत होती है। उसके लिए उर्दू जो उर्दू पढ़ने वाली तादाद में इजाफा हो, उसके लिए उर्दू एक्शन कमेटी क्या काम कर रही है? देखिए उर्दू एक्शन कमेटी जो काम, ये उसका जो ये काम है कि भाई उर्दू के सिलसिले में जहां जहां भी उर्दू के साथ नाइंसाफियां हो रही हैं या नाइंसाफी उसको कैसा उसके तदारुक हो, ये पहले ये एम होता है। जी जी और आपने सवाल किया कि भाई उर्दू किताबें नहीं मुहैया होती हैं, बिल्कुल सही है, समझा। अब उसमें हम इसमें क्या बोले, जो किताब जो शाये करते हैं उनका कहना है कि हम लोग शाये करते हैं तो खरीदार नहीं होते, जो कि बिल्कुल गलत है, इल्जाम लगाते हैं, एक तरह से वो साजिश करते हैं, समझा कि नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। तो उर्दू वालों को खुद उसको महसूस करना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। वक्त आप देखिए कि बंगाल में आप देखिए बंगाली बहुत रिच गया, वो वहाँ की सरकारी जुबान ही है और वहाँ के इसमें ये है माहौल में एकदम ये है। तो कभी बंगाली लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ बंगाली का कभी आप देखा होगा, आप तो वहां से ताल्लुक भी है, जी जी, इस तरह का कहीं ये होता है उनके यहाँ सेमिनार ये वो, तो आपकी कमजोरी है ना भाई। जी जी, आप तहफ़्फ़ुज़ उर्दू, तहफ़्फ़ुज़ ये उर्दू ये सब जो करते हैं इससे और नुकसान होता है। कहीं भी आप जाइएगा तो ये सब जो होता है, आप जाइए ना भाई साउथ में जाइए आप, तो हर की जुबान अलग अलग है, छोटी छोटी रीजनल जगह है, जैसे आपके कर्नाटक में कन्नड़ है, मलयालम है, आपके इसमें केरला में, और वहाँ जो है आपके क्या नाम है तमिलनाडु में तेलुगु है। तो हर जगह तो अपनी अपनी जुबान के तई लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। तो आपको महसूस होना चाहिए कि भाई अगर हम अपनी, अगर सबसे बड़ी बात ये ताले लीजिए ना भाई, वो आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी तालीम तो किसी स्कूल या मदरसे में नहीं हुई थी, घर पर हुआ थी, और उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम उनकी हुई थी। हाँ, लेकिन देखिए कि वो मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, और कोई भी चीज जो होती है अगर आप उसकी गहराई से अगर मुताला करेंगे तो तमाम जुबानें जो होती हैं, जैसे इंग्लिश हो, हिंदी हो, आपके ये फ्रेंच हो, सब पर आप बेहतर तरीके से अबूल हासिल करेंगे जब तक उसको जो है आप। मैं देखा कि बिहार उर्दू अकेडमी इसका काम है, उर्दू को बिल्कुल बहुत बनी हुई है उसके लिए। हाँ, ये बराबर, इसके लिए हम लोग भी मुतालबा कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी, जैसे उर्दू मशावरती बोर्ड है, जी जी,
लगभग 6 साल से ये है, वहाँ क्या को भी हुकूमत का तासुबाना रवैया है या फिर लापरवाही है? या देखिए, उसके पीछे कोई साजिश, हुकूमत उर्दू खत्म करने की कोई साजिश तो नहीं हो रही है? देखिए, ये हम नहीं कह सकते हैं कि हुकूमत साजिश करे, इसमें अपनी भी कमजोरी है, महसूस कीजिए। बहुत से जो है क्या कहते हैं जगह ऐसी होती है कि अब उसको क्या कहें हम, तो हुकूमत चाहती कि हो, लेकिन एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाती है। आप कहना चाह रहे हैं कि उर्दू वाले ही नुकसान पहुंचा रहे हैं कि बस वो की होड़ है, ओहदा हमको किसी तरह मिले, बस यही उनकी ख्वाहिश होती है। मेरा सवाल एक ये भी है कि आपका अखबार पुराना तारीखी अखबार भी है, आप खुद 4-5 दहाई से अखबार चला रहे हैं अपने तौर पर, अपने वालिद के बाद। क्या उर्दू अखबार की कारी की तादाद घट रही है और उसकी वजह क्या है? देखिए, ये लोग जो कहते हैं तो हमको बड़ा अजीब लगता है, बराबर लोग कहते हैं ये उर्दू की कारी की तादाद घटने का जो लोग रोना रोते हैं, क्या आप बता रहे हैं कि ये जो डिजिटल का गया है माहौल है, क्या हिंदी अखबार के सर्कुलेशन नहीं घटे? क्या इंग्लिश अखबार के सर्कुलेशन नहीं घटे? लोग कहते हैं कि उर्दू की मैगजीन बंद हो गई, हिंदी की बड़ी बड़ी मैगजीन नहीं बंद हुई है, लेकिन बंद हुई, लेकिन उर्दू का कोई है नहीं सिवाय एक दो। समझा? तो आप सबसे अहम बात यह है कि आजकल नौजवानों के हाथों में जब से मोबाइल आया है ना, उसकी वजह से मुताला की जो आदत है वो खत्म होती जा रही है। हर कोई बस वो मोबाइल लेकर के उसी में मशगूल है। आप घर पर जाइए ना, सबके पास मोबाइल है। हम आखिरी सवाल की तरफ आ रहे हैं सर कि बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत है, उससे पहले राबड़ी लालू की सरकार थी, उसके कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ मुतालात बताते हैं कि बिहार में मुसलमानों की समाजी भी, तालीमी, माशियात बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है, बिलखुसूस ह्यूमन डेवलपमेंट के एतबार से। उसकी वजह क्या है? ये तो हमको नहीं लगता है। मतलब आज भी तालीम, मतलब ये ड्रॉप आउट की शरह सबसे ज्यादा है मुसलमानों में। अगर आप हायर एजुकेशन की रिपोर्ट को देखेंगे बिहार की मतलब कि मुसलमानों में, जैसे सीमांचल की रिपोर्ट में बताया गया था कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शरह है, ये उसकी वजह क्या है आखिर? नहीं, एक तो ये बड़ा स्टेट है जी और शायद इसकी आबादी 12 करोड़ कंफर्म नहीं है, लेकिन बड़ा मैंने ये जो है आपके झारखंड अलग हुआ है, उसके बावजूद यहाँ जो है, तो ये जो है अब जहाँ तक तालीमी पसमानदगी का ताल्लुक है, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है बने कि जो मुस्लिम जो अब है, जो साहिब हैसियत है, साहिब शरीयत है, उन लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर जगह जो है एक कोऑपरेटिव बेसिस पर स्कूल खोले, बुनियादी स्कूल, जारंगी स्कूल जो होता है वो खोले, और जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं उसमें उसको कैसे हम तालीम के तरफ राग़िब करें, उस पर काम करने की असल जरूरत है। अभी हम गए थे भागलपुर में, एक गांव में एक स्कूल है, उसमें काफी तादाद में हमने देखा कि बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां और बच्चे जो है वहाँ करीब 300 लगभग 400 लगभग थे। तो एकदम बिल्कुल ये इलाका है, गांव है जिसमें जो है, तो उस वक्त हम गए थे तो देखा कि माशाअल्लाह बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चियां जो है वहाँ मौजूद थी, बाज़ाब्ते जो हिजाब में, और वहाँ तालीम हासिल करनी। तो हमको लगा कि, और हमने वहाँ सबको कहा यही कि आपने जो स्कूल कायम किया है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस मोहल्ले का ये स्कूल है आप लोग एक सर्वे कीजिए कि इस मोहल्ले में कितने घर हैं और कितनी बच्चियां हैं, और जो बच्चियां कौन है जो आ नहीं रही, उनके घर वालों को राग़िब कीजिए कि आप अपने बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाएं, एक जज्बा पैदा कीजिए लोगों में। उसके बाद आप जाइए, आप जो आपके जो पड़ोसी जो गांव है, जो इलाका है, वहां जाइए, बस आप तो एक सर्वे करके जाइए और वहां जाइए। ठीक है, काम थोड़ा
दुश्वार तलब है, लेकिन हम लोग तो उसकी उम्मत है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने जो है क्या कहते हैं मुश्किल से मुश्किल हालात में किस तरह इस्लाम को फैलाया। जी हाँ, तो हम लोग तो उम्मीद उम्मत है। जब आप मुश्किल तरीन दौर का जब आप मुकाबला नहीं कीजिएगा तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। ये जो भी मुसाफिर अपनी मंजिल की तलाश को जाता है तो जो चलता है उसी को राह मिलती है, जो थक हार करके बैठ जाता है तो वो तो सिफिर हो जाता है ना। इसलिए आपको आगे बढ़ना है। और गांव गांव में लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई नहीं, गांव गांव में आप स्कूल कायम कीजिए, स्कूल मकतब कायम कीजिए, एक कोई कोऑपरेटिव वजीफे दाद बाकी के तौर पर आप जो है क्या कहते हैं तालीम दीजिए। जाहिर है कि ये बात सही है कि मुसलमानों में तालीम की बहुत कम हो गई है, इसको कैसे बढ़ाना है तो उसमें हर काम को आप गवर्नमेंट पर नहीं छोड़ सकते। गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। अब यहाँ मदरसा है, आपके मदरसा जो है जो सरकारी मदारी, उसमें सुनते हैं कि लोग बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसकी कौन नुकसान। मैं सवाल नहीं भूल गया था, मैं देख रहा हूँ कि कई रिपोर्टें आई कि शमसुल हुदा है या उर्दू अकेडमी, इस तरह के जो मुसलमानों के जो पुरानी तारीखी इदारे हैं वो धीरे धीरे अपने जवाल की तरफ जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है। देखिए आज भी उर्दू भवन कायम है, आप देखते होंगे, शायद गए होंगे। उर्दू अकेडमी उर्दू भवन कहलाती है, उसमें सब कुछ है। तो हालात जो है देखिए, आप जो कहा जाता है मायूसी कुफ्र है, आप अपने आप को जो है इस लायक बनाइए कि कैसे हम इसको खुद से संभालें। कई कौम ऐसी है जिन्होंने हालात को खुद संभाला अपने आप को। आप देखें ना वो ये आपके यहूदी कौम जो है, हाँ, उस जमाने में पूरी तौर पर उसको नाबूद कर दिया गया था, एक तरह से समझिए जो भी हो। लेकिन उसने जो है बहरहाल जो भी हो, गाजिब है चाहे कुछ भी है, उसने आज पूरी दुनिया पर कैसे राज करा है वो, हाँ? अपने पढ़ाई की बदौलत में। हम अपने बच्चे को दे देते हैं कि मोबाइल, बच्चा ये सब करता है, देखता है तो बड़ा खुश होते हैं, देखो ये सब ये कर रहा है। ये आपको पता है वहां जो है बच्चों को बिल्कुल नहीं दिया जाता है मोबाइल। हम तो अभी इंग्लैंड में गए, देखा बच्चे ज्यादातर मुताला करते हैं इसका। तो आप जो कह रहे हैं कि तादाद कम होती जा रही है, और अब यकीन मानिए मेरे पास तो किताब का अंबार लगा हुआ उर्दू का, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसे पढ़ने वाले कहाँ है। ये वाकई संजीदा सवाल है। तो ये देखना कि उर्दू जो क्या कहते हैं मुताले की आदत, चाहे कोई भी जुबान हो, चाहे ये लोगों में अब कम होता जा रहा है, समझा कि नहीं। तो वजह बहुत सी है। उस वक्त सिर्फ ये कि भाई उर्दू ये हो रही है वो हो रही, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखें तो हिंदी जुबान को लोग कहते हैं कौमी जुबान, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अगर देखें मुताला करें उसका तो क्या है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और क्या कहते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के अलावा कहाँ ही अब जाते होंगे हर जगह, कहाँ बोली जाती है हिंदी। लोग समझते नहीं, तैयार नहीं होते हैं। अगर आप चले जाए केरला तो लोग एक भी हिंदी बोल रहे हैं। आप लोग तो खुद वहां से बिलोंग करते हैं, आपके बंगाल से, कहीं पर देखिएगा कि बंगला बोर्ड के अलावा हिंदी में बोर्ड होता है। शायद जो नाजी जो सरकारी जो अदारे होते हैं उसमें कहीं कहीं पर उर्दू का बोर्ड हमको नजर आया। तो जज्बा भी पैदा होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है उर्दू वालों में भी जज्बा पैदा होना चाहिए कि हम अपनी जुबान को किस तरह, अगर आप अपनी जज्बा जो आपका गालिब आ जाएगा तो कोई नहीं कि आपकी जो है ये हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और अपने नाज़रीन से दरख्वास्त है कि अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमें लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।